Good morning, students. Yeah, I saw a message from Manish Kumar. Good morning, Aisha, Maidi, Harsh, Nanda. मेरे को भी नाम याद हो जाएंगे. Good, good. Oh, so fast. Aha, great. Very good. Dhara, Kusha, then Upadhyay. Very good, good morning. I hope you had nice day yesterday. Especially you are brimming with confidence, isn't it? Rishi, Pritesh, very good names. Wow. This time we have Rishi Muni, huh? Rishi, Pritesh, cool. Vishal, oh, great. I hope yesterday's session was very enlightening and you all are brimming with confidence. है ना? And as usual, Akash, drops in so as to stand alone, stand out from the crowd, in the Q&A box. Yes, good morning, Akash. Yesterday's self-confidence session was superb. Even I enjoyed, and every time I attend his session, there is some new way of, uh, uh, way of understanding comes to me also. Very nice. Very happy for you all. And I hope you are gearing up for a physical class also. है ना? I'm connected. Soon we are connected with today's speaker. And he's Dr. Arun Kumar. And I'll hand over the charge to him quickly, but it is imperative for you all to introduce him. Okay. अभी आप म्यूट कर दीजिए. Good morning, sir. Welcome to today's session. Arun Kumar sir is going to take, we have some net issues. So quickly, I will introduce him and hand over the charge to him. He's going to take yet another important session, and that too is time management, right? Time को manage कैसे करें? Time तो pass हो रहा है, but yes, he will let you know how to manage time. So before I hand over the charge to him, I will introduce him. He's Dr. Arun Kumar. He's head of mechanical engineering in School of Engineering. He is PhD from mechanical engineering, and he has done his IIT from BHU Varanasi. Sorry, he has done his PhD from IIT Banaras Hindu University, Varanasi. He is MTech again in mechanical engineering from NIT Patna. His area of expertise is solar energy, storage system, green building, aerospace, and he has been awarded Best Paper Presentation at IIT BHU Varanasi. He is reviewer of a journal, very famous journal that is of thermal engineering. The credential doesn't stop here, and he has over 9 papers published to his credit. He has presented many papers in national and international journals, and he has published one book chapter on solar thermal energy store. And as I said earlier, he has been awarded Best Paper Presentation on the occasion of Institute Day from IIT BHU Varanasi. So quickly, I invite right, very crucial time management. So Arun sir, you are invited here. Acha, my voice is lacking. I know there is problem. Please bear with us. Arun sir will not have a problem. Over to Arun sir, sir. Arun sir is going to take my place because we have two connections and net issues are there.
Thank you, Namrata ma'am, for introducing me. And good morning, everybody. Good morning, students. First of all, I want to share the PPT. Good morning, everyone. Please put it in chat box that are you excited to join this session, time management. Please put it in chat box that I am excited. Nice. Very good. So today is time management. Time management a key to unlock yourself. हम अपने आप को अनलॉक करना चाहते हैं और टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर दिस. तो अनलॉक हम कैसे करें? सपोज जस्ट आई वांट टू शो माय one page. This is for you. What do you want today? Do you want something miracle in your life? आप अपने जीवन में कुछ मिरेकल करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं. द आंसर इज यस. डू यू वांट हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ? क्या आप ऐसा चाहते हैं? डू यू वांट टू एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ? अपने जीवन की पूर्णता को जीना चाहते हैं या अपूर्ण लाइफ जी करके ही चले जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू फील एवरी मोमेंट शुड बी मोमेंटस? जिंदगी के हर एक क्षण को महत्वपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं? डू यू वांट टू हैव वर्क लाइफ बैलेंस? क्या आप चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस्ड हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर मन में ऐसी तमन्ना है, प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स. यस, आई वांट टू लिव a peaceful and happy life. Please put it in chat box that yes, I want the peaceful life, do something miracle in our life, enjoy the every aspects of life. Put it in chat box. Yes. Nice. Then welcome you all. This session is for you. ये सेशन आपके लिए है जो आपको मिरेकल जिंदगी को देगा. एवरी मोमेंट शुड बी मोमेंटस की राह पे ले जाएगा. एंड वर्क लाइफ बैलेंस्ड. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मल्टीपल टास्क वी हैव. कैसे काम को सेलेक्ट करना है, कैसे काम को रिजेक्ट करना है, ये हम सब जानने का प्रयत्न करेंगे. टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट वो लाइफ का यूनिट होता है. दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ. ये जिंदगी का ताला बंद हो जाता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं. तो हमको उस ताला का, उस लॉक का की फाइंड आउट करना है. सपोज दिस इज द लॉक. ये लॉक है और यही हमारी जिंदगी है जो बंद पड़ा हुआ है, क्लोज. इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ताला को खोलने के लिए क्या करना पड़ा? आइदर यू फाइंड द की और यू फाइंड द हैमर.
1 minute, there is one call. Just take. हेलो, हाँ मैम आए हैं, लेकिन अभी मैम थोड़ा बाहर गए हैं लेक्चर से। मैडम का मैं उन्हीं के जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज वन कॉल फॉर दैट। सो अगर ये लॉक है, इसको हमें ओपन करना है, तो आइदर यू फाइंड द की टू ओपन द लॉक और द नेचर्स ऑटोमेटिकली हैमरिंग यू। या तो आप इसको खोल लीजिए, उसके लिए आप चाबी को ढूंढ लीजिए, या तो फिर हैमरिंग तो आएगा ही। सो व्हाट यू रिक्वायर्ड इज टू जस्ट फाइंड द की टू ओपन द लॉक। Find the key to open the lock. And if you don't find the key, then natures automatically find for you the hammer. And what is the role of hammer? They can't open the lock, but it break the lock. या तो आप इस ताला को खोलने के लिए आप चाबी को ढूंढ लीजिए, नहीं तो फिर नेचर आपके लिए हैमर तैयार रखे हुए हैं, उस ताला को फिर ब्रेक करेगा। सो डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ, फाइंड द की as a time management to open the lock. So you can see here, the life is like a lock. Find the key to open it. Otherwise, hammering will automatically comes to break it. या तो आप चाबी को ढूंढ लीजिए, या तो हैमरिंग तो ऑटोमेटिकली आएंगे और फिर उसको ब्रेक करेंगे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपनी जिंदगी को ब्रेक करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं। द चॉइस इज योर्स। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू मैनेज योर टाइम इफ यू हैव द मल्टीपल टास्क्स। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसको हम एलोकेट कैसे करेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि समय को मैनेजमेंट करने के बाद उसको हम एनर्जी के रूप में, उसको एलोकेशन के रूप में, उसको मनी के रूप में कैसे हम देखते हैं। आज के लेक्चर से आप यह जान पाएंगे कि हमको समय को कैसे देखना है। अभी हम समय की ओर ध्यान नहीं देते, बट द टाइम इज द यूनिट ऑफ लाइफ, बट इवन आई कांट गिव अटेंशन टू दैट। समय पे ध्यान नहीं देते, समय पे हम ध्यान ही नहीं देते। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको जो आपका जो दृष्टिकोण है वो समय के प्रति बदल जाएगा। सो प्लीज अटेंटिव, एंड आई ऑल्सो गिव द होमवर्क फॉर यू एट द एंड ऑफ द स्लाइड। लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जो आपके करने हैं, जो आपको करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज बी रेडी एंड प्लीज बी अटेंटिव। अटेंटिव रहने की जरूरत है, तो बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। नो द वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम को हमें जानना है, उसके लिए मैं एक नंबर्स को दिया हूं। वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट दिस नंबर रिप्रेजेंट्स? प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स। ये नंबर क्या बता रहा है? प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स। Please put it in chat box. Very nice. Seconds in a day. Good. Rishi, Ipra. Someone's salary. No, no, no. Kosha. Someone's salary. It's not a someone's salary. Okay, nice. इसका मतलब है कि आप इस नंबर्स को जान रहे हैं। Everybody wants the even life, not the odd life. कोई odd life कोई odd life चाहता है क्या? कोई चाहता है कि मेरा जिंदगी odd हो जाए, मेरे सीटिंग अरेंजमेंट odd हो जाए, the classroom is look like odd. Everybody wants even. If you want even, if you want happen everything even in your life, you have to follow this even number 86400. Even number 86400. 8 is even number, 6 is even number, 4 is even number, 0 is even number. If you want everything even in your life, so you have to follow this even number 86,400. What does it represent? This represents
the next term, unit of life. This is unit of life. Time. Time is the unit of life. 86,400 या एक सेकेंड है जो आपको 24 घंटे में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इतने रुपये आपको दे दिए जाएं तो आप तुरंत प्लान बना लेंगे, मुझे टेबल खरीदना है, मुझे कुर्सी खरीदना है, मुझे टेलीविजन खरीदना है, मुझे वेबकैम खरीदना है, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदने हैं, तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। अगर आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज क्रेडिट कर दिए जाएं तो तुरंत खरीदना शुरू कर देंगे, प्लान बनाना शुरू कर देंगे, और उसमें यह कर दे कि यह अकाउंट का जो बैलेंस है वो आज तक ही वैलिड है, इसके बाद ये चले जाएंगे, आइदर यू यूज इट और नॉट। तब तो और भी क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि ये तो चले जाएंगे, तो यूज कर लो इसको। इतना ही समय, इतना ही सेकेंड्स हर एक दिन हमको मिलता है, और एक बार ये चले जाते हैं। जब एक बार ये चला जाता है तो फिर से वापस नहीं आता है। सो वी मस्ट नो द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम। You can make another dollars, but you can't make another day of your life. जो एक बार चला जाता है फिर से वापस नहीं आता, और इसका इंपॉर्टेंस हमें रखना है। So you should have to give value to your time. Time is an allocation. अब मैं बताऊंगा कि समय हमको कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे एलोकेट करेंगे। उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। जस्ट लाइक सी द बॉक्स। इस बॉक्स को आप यहाँ पे देखें, और ये बॉक्स जो है इसको आप दो भाग में पहले बांट दिए। नाउ अगेन द डिस्ट्रीब्यूट इन 4 पार्ट्स। यू कैन से दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। कुछ लोग आप जानते भी होंगे इसमें, ये 4 क्वाड्रेंट्स है। तो कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देयर आर सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, समथिंग विच आर अर्जेंट एंड समथिंग विच आर नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों को देखना है। ये जो बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम आपके लिए अर्जेंट है, वी हैव टू फॉलो दिस। जस्ट लाइक से अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यू कैन से दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे देखिए, दिस इज फायर फाइटिंग। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम अगर कुछ कुछ हो तो वो फायर फाइटिंग है। फायर फाइटिंग मतलब डेडलाइन फिक्स कर दो, मुझे ये काम करने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट। दूसरा है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। प्लानिंग आप करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज का तो वो इंपॉर्टेंट होता है, अर्जेंट नहीं होता। हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं, बट देयर आर सम वर्क विच इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, तो उसको हम पहले करेंगे। उसके बाद टाइम वेस्ट हो जाता है कब, जब इंपॉर्टेंट ना हो और अर्जेंट ना हो। वो जो हमारे पास ये 4th क्वाड्रेंट में है वो टाइम वेस्टिंग होता है। एंड डिस्ट्रैक्शन, दैट इज अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर हम फायर फाइटिंग की बात करें उसमें क्या क्या आएगा, क्राइज। अगर फायर फाइटिंग वाला काम हो, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो, वो प्रेसिंग प्रॉब्लम होता है, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट होता है। डू इट नाउ। नो नहीं कहना है इसको, नाउ कहना है, नॉट एन ओ, इट शुड बी NOW। नो से नाउ में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई भी काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट मतलब अति आवश्यक, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। अगर कोई भी काम इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है तो उसको नो मत कहना, नाउ कहने की जरूरत है। यू हैव टू कन्वर्ट योर नो इनटू नाउ। प्रेसिंग प्रॉब्लम्स अदरवाइज आपको प्रेशर क्रिएट करेगा। सो प्लीज, डेडलाइन, दिस इज द डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट। एक डेडलाइन दीजिए, मुझे एक दिन में करना है, रात दिन लग के इसको करना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। अगर आप इस काम को नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, क्रिएट होते चले जाएंगे, और फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और भी ज्यादा अर्जेंट वो बन जाएंगे।
फिर कॉलेप्स हो जाते हैं लोग। सो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट हो तो डू इट नाउ एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। लेकिन अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस? जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसके लिए यहां पे देखें, जैसे प्लानिंग करना है, रिक्रिएशन की बात है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात है, रिकॉग्निशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप कुछ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, यहां भी मेरा काम हो सकता है, वहां भी मेरा काम हो सकता है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात हो, रिक्रिएशन की बात हो, इंटरटेनमेंट की बात हो, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अर्जेंट बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। अपनी जिंदगी का प्लान करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सो वी शुड हैव टू स्पेंड सम ऑफ द टाइम हियर आल्सो। तो ऐसे काम को क्या करना है, शेड्यूल कर लेना है। डेडलाइन फिक्स नहीं करना है, उसके लिए शेड्यूल कर लेना है कि ये काम को भी मैं करने जा रहा हूं। एक कलम कॉपी निकालिए, उसमें लिख डालिए, जिंदगी एक कोरा कागज, लिखना भी चाहिए हमें। अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई और लिख के चले जाएंगे। कि जिंदगी एक कोरा कागज है, तो उसमें हृदय रूपी कलम लीजिए, दर्द रूपी स्याही लीजिए और अपनी कहानी को लिख डालिए। अदरवाइज कोई आएगा और आपके उस कोरे कागज में लिख जाएगा, फिर उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। सो डिजाइन योर लाइफ, अदरवाइज आप किसी और के डिजाइन लाइफ में चले जाएंगे अगर आप लाइफ को बाय डिफॉल्ट जिएंगे तो वो जो क्वालिटी टाइम है विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसमें आप प्लानिंग करिए, रिक्रिएशन करिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिकॉग्निशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये क्या करते हैं, यहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्लान, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड एट द सेम टाइम लाइफ टाइम गोल, ये सब जो हम बनाते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसको आप शेड्यूल कर दीजिए कि मैं 1 महीने के बाद से ये काम करने जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद से ये काम करने जा रहा हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट आ गया। कुछ मेल्स हैं विच इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट टू रिप्लाई। आप जैसे देखो, सम रिपोर्ट्स आ गए, बहुत सारे रिपोर्ट्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सम मीटिंग्स, कुछ मीटिंग्स हैं विच इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, उसको अटेंड करना है, इट विल ऑल्सो टेक टाइम। फिर पॉपुलर एक्टिविटीज कुछ हैं, अब इंस्टाग्राम में चले गए और वहां पे गए तो फिर अपना समय को तो लगा ही रहे हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन देता है। तो ऐसे कामों को क्या करना है, ऐसे वर्क को क्या करना है, प्लीज हैंड ओवर टू अदर वन, क्योंकि टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ऐसे काम अगर आपके पास आता है तो उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट करने से क्या होगा कि अननेसेसरीली जो डिस्ट्रैक्शंस आपको मिल रहा है वो डिस्ट्रैक्शन से आप हट जाएंगे। जो आपके लिए फायर फाइटिंग है, जो क्वालिटी टाइम है, उसमें आप स्पेंड कर पाएंगे टाइम को। सो डिस्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करता है ये, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अभी साइन कराना है, अभी करना है, यस यस आई एम डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क, नो सर प्लीज आप साइन कर दीजिए। अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे समय बिल्कुल नहीं बिताना है, प्लीज ट्राई टू मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है। एज ए सोशल एनिमल ये भी जरूरत है, सोशल एनिमल है ये, जरूरत तो है इनकी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कुछ टाइम वेस्टिंग होता है। क्या होता है, जो कि ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। सम मेल्स, सम फोन कॉल्स, प्लीजेंट एक्टिविटीज कुछ है। कुछ फोन कॉल्स है जो बिना मतलब के होते हैं, ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है, बट इट विल टेक टाइम। और आप सब जानते हो ये कौन सा चीज है। ऐसे कामों को ड्रॉप इट नाउ, ड्रॉप करना है। हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, टाइम वेस्टिंग से बचना है। मैं आगे बताऊंगा कि कितना परसेंट इसमें क्या होता है, मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम बताएंगे आगे चल के कि कहाँ पे कितना परसेंट टाइम देना है, आगे के स्लाइड में हम करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि व्हाट आर द वर्क विच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द वर्क विच इज अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। वो सबको समझ के उसको एलोकेट करेंगे। दैट्स व्हाई द टाइम इज एन एलोकेशन, दैट इज कॉल्ड द टाइम इज एन एलोकेशन। और उसको आप मैनेज करेंगे तो जिंदगी के बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स पे आप अधिक काम कर पाएंगे। लेकिन आज तक आप वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं,
तो आप वही रहेंगे जो होते आ रहे हैं, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। अब तक आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर आप परेशानी में रहेंगे हमेशा। पता चला कि हमने बहुत सारे काम को किए, कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट छूट गया, उसको नहीं कर पाए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क रह गया, तो हम बहुत पछतावा करते हैं बाद में। दैट्स व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भविष्य में आप रिग्रेट नहीं करेंगे इफ यू फॉलो दिस। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इफ यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। किस क्वाड्रांट में कितना को रखना है, यू हैव टू मेजर दैट। फोर्थ क्वाड्रांट में कितना समय मेरा जा रहा है, थर्ड क्वाड्रांट में कितना समय जा रहा है, उसको हमें मेजरमेंट करने की जरूरत है। अगर आप मेजरमेंट नहीं करेंगे, इफ यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। कभी कभी आप इंपॉर्टेंट काम होंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू कांट मेजर यू कांट इंप्रूव। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसको देखने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पे अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, टेक लॉट ऑफ टाइम एन एग्जाम्पल, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। आज के बाद आप टाइम को दूसरे तरीके से देखना पसंद करना शुरू कर देंगे। तो अर्जेंट क्या है, देखो। अगर पहला नंबर देखें, सीरियल नंबर फर्स्ट, अर्जेंट नो, इंपॉर्टेंट नो, टेक अ लॉट ऑफ टाइम नो। ना तो अर्जेंट है, ना तो इंपॉर्टेंट है, ना समय ही ले रहा है। एग्जाम्पल में, इंस्टाग्राम फॉर 5 मिनट्स, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक लेते हैं इंस्टाग्राम फॉर 5 मिनट्स। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेता है, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, यू मे स्पेंड 5 और 10 मिनट्स टाइम हियर। क्योंकि आप भाग नहीं सकते इन सब चीजों से। ये जो 8 सीरियल नंबर्स तक है यहाँ पे, हर एक जगह टाइम को जरूर स्पेंड करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर मेजरमेंट होने चाहिए कि कहाँ पे आप कितना समय लगा रहे हैं। अदरवाइज कभी कभी आप इंपॉर्टेंट काम को छोड़ देंगे। नाउ, सीरियल नंबर सेकेंड। सीरियल नंबर सेकेंड, 1 मिनट। हेलो, सॉरी। सीरियल नंबर सेकेंड की अगर मैं बात करूं, तो अर्जेंट है क्या? नो। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट नो, इंपॉर्टेंट नो, बट टेक अ लॉट ऑफ टाइम यस। अब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, समय भी बहुत ले रहा है आपका। जैसे बेंच वॉचिंग, गॉसिपिंग, सीरीज ऑफ एपिसोड्स आप देखने फिर गए। अर्जेंट है क्या? नहीं। इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। समय तो लंबा ले रहा है। तो यह भी एक कैटेगरीज में आता है, कैसे भी काम हम करते हैं। तीसरा सीरियल नंबर में, अर्जेंट है क्या? नो। इंपॉर्टेंट है? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। समय ले रहा है क्या? नहीं, समय नहीं ले रहा है। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। जैसे कॉलिंग टू द पेरेंट्स, आप माता पिता से कॉल करते हैं, माँ बाप से बातें करते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा आधार है। फ्रिक्वेंटली कॉल करने चाहिए उनको, भले ही 1 मिनट के लिए, तो उसमें समय नहीं लगता। तो फ्रीक्वेंटली हम अपने आधार से जुड़े रहें। फोर्थ में आता है, अर्जेंट है क्या? नहीं। इंपॉर्टेंट है? यस। टाइम लेता है क्या? यस। अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट भी है और समय भी लेता है। वो कौन से काम है? जैसे एक्सरसाइज आप करेंगे, अर्जेंट है क्या आपके लिए? आप चाहें तो नहीं भी कर सकते। रीडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। स्लीपिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, बट इट विल टेक टाइम। 6 आवर्स तो सोने ही पड़ेंगे, यहाँ पे आपको समय बिताने पड़ेंगे। आप इंद्रजीत नहीं, निंद्रा पे विजय आप प्राप्त नहीं किए। इसीलिए आपको यहाँ पे बात करनी होगी, यहाँ पे समय देना पड़ेगा, यहाँ पे थिंकिंग करने की जरूरत है। पांचवा नंबर पे देखो, अर्जेंट है क्या? यस। इंपॉर्टेंट है? नो। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या वो टाइम लेता है? इट वुडंट टेक अ टाइम। वो समय नहीं लेता है। जैसे कॉलिंग प्लम्बर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज अर्जेंट। कॉल किए, यहाँ पे रिपेयर करना, आ जाइए, रिपेयर कर दीजिए। टाइम भी नहीं ले रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट इट इज अर्जेंट। 1 मिनट समय लेकर के कर दिया। अगर 6 सीरियल नंबर की बात करें, अर्जेंट है क्या? यस। इंपॉर्टेंट है? नो। टेक अ टाइम? यस। अर्जेंट है, टाइम भी ले रहा है, जस्ट लाइक यूजलेस एंड माइंडलेस मीटिंग्स।
कुछ ऐसे मीटिंग्स हैं अर्जेंट बेसिस पे तो बुलाया जाता है, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। टाइम ले रहा है, लॉट ऑफ टाइम ले रहा है, तो हमें अर्जेंटली समय बिताना पड़ता है, बट एटलीस्ट वी शुड मेजर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम वी गिव टू दिस सीरियल नंबर। मेजरमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि आप हर एक जगह पे तो जाना ही पड़ेगा, बट वी शुड ऑप्टिमाइज दिस, वी शुड मिनिमाइज दिस। नाउ सेवंथ, अर्जेंट यस, इंपॉर्टेंट यस, टेक अ लॉट ऑफ टाइम नो। कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, समय लगता नहीं। क्विक वर्क कॉल, कोई क्लाइंट्स कॉल है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, समय भी नहीं लगना है, वी शुड हैव टू स्पेंड हियर आल्सो सम ऑफ द टाइम। 8 नंबर में यस यस यस, इट इज अर्जेंट, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट आल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज द क्राइसिस। कुछ फैमिली क्राइसिस होते हैं, कुछ दुर्घटना हो जाते हैं, तो वहां पे जाना हमारे लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, वो समय भी लेगा। तो कुछ समय हमारी जिंदगी के ऐसे भी आते हैं जहां पर हमको यहाँ पे समय देने पड़ते हैं। तो ये सारा जो 1 to 8 है, यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा कि आपको ये काम नहीं करना है, दूसरे कॉलम में नहीं जाना है, तीसरे रोज में नहीं जाना है। एटलीस्ट यू शुड मेजर और उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। जाना तो आपको हर जगह पड़ेगा, बट व्हाट वी रिक्वायर टू डू इज वी हैव टू ऑप्टिमाइज द टाइम। कहाँ पे देना है, वेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू कांट मेजर यू कांट इम्प्रूव। एक बार फिर से हम उसी रेक्टेंगल को बनाते हैं, इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। उसके बाद फायर फाइटिंग, क्वालिटी टाइम, टाइम वेस्टिंग एंड डिस्ट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना परसेंट टाइम, एक रिसर्च से ये पता चला है कि हम कितना परसेंट टाइम किस क्वाड्रांट में, किस कॉलम में हम देते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की बात करते हैं, जो काम इंपॉर्टेंट भी होता है, अर्जेंट भी होता है, तो जनरली 23% टाइम मेरा वो यहाँ पे आता है। 23% केसेस में 23% अपना टाइम मैं इस क्वाड्रांट को दे पाता हूँ। अगर क्वालिटी टाइम की बात करें तो वहां पे कितना समय देता हूं? 52%, विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, हम वहां पे 52% टाइम देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अच्छी जगह दे रहे हो, बट मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे समय जाता है, वी नीड टू ऑप्टिमाइज द टाइम, और जहां पे लगाने की जरूरत है वहां पे हम लगाएं। 13%, 13% कहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, वहां पे हम 13% समय को लगा देते हैं। 13% ऑफ आवर प्रीशियस टाइम वी वेस्ट, टाइम वेस्टिंग। क्या हम इस 13% को घटा के 2% नहीं कर सकते? जीरो तो नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल आर द सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें किसी से बातें भी करनी होती है, गप्पे भी हाँकने होते हैं, बट वी शुड मिनिमाइज दिस। कम से कम पार्टिसिपेट इसमें करें। और 12% टाइम मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी ये काम है, कभी वो काम है, अचानक कुछ अर्जेंट काम हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो 12% केसेस में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जहां पे हम काम में समय दे सकते थे, जिस काम में इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में, वहां भी अफेक्ट कर जाता है ये। तो क्या हम इस 12% को घटा के 2% या 1% नहीं कर सकते? ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, और ये ऑप्टिमाइजेशन तभी संभव है जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें पता चलेगा कि आप कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छे समय को लगा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी सी, केवल इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है 75% हम करते हैं। इन 75% केसेस मैं इंपॉर्टेंट वर्क करता हूँ, बाय रिसर्च इट कैन बी सीन। एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको हम 25% समय देते हैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि 25% जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करके 10% कर दें?
so that the rest of the time goes to the add some more time to 75%, which is the important work. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में हम कर दें, इंपॉर्टेंट में लगा दें. क्या ऑप्टिमाइज इसको हम नहीं कर सकते? यस, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टाइम मैनेजमेंट. वो टाइम मैनेजमेंट से हम काम कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द टाइम एलोकेशन. ये टाइम को कहाँ एलोकेट करना है वो हमें देखना है. कौन से कार्य में कितना टाइम को एलोकेट करना है उसके बारे में हमें सोचना है. नाउ द टाइम इज एनर्जी. टाइम इज एनर्जी. कैसे हम समझें? हम समझें तो टाइप्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी. फिजिकल एनर्जी. फिजिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, द हार्ट बीट नॉर्मल, everything that is happening inside your body that contributes your physical appearance, that is the physical energy. अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो that is also important. That is a one kind of energy. And another emotional energy. आप बाय हार्ट कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, वो एक इमोशनल एनर्जी है. अपने इमोशन से वर्क को कैसे जोड़ लेते हैं, दैट इज द इमोशनल एनर्जी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. उसके बाद मेंटल एनर्जी है कि आपका मेंटल प्रेजेंस कैसा है, कैसे रिएक्ट करते हैं, द एटीट्यूड, द वे ऑफ थिंकिंग, दिस ऑल आर द मेंटल एनर्जी. क्या आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं? तो दैट गिव्स यू द पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो. नाउ द स्पिरिचुअल एनर्जी, द थिंग्स आर गुड और बैड, यू हैव टू मैनेज दिस. कि कोई भी चीज अच्छा है बुरा है उसको हम पहचान पाते हैं. स्पिरिचुअलिटी से हम उदार, काइंड एंड जेनरस होते हैं और हमें कंट्रीब्यूशन की भावना बनी रहती है. एबिलिटी ऑफ गिविंग 80% एंड टेकिंग 20% मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. 80% देने का काम करना है और 20% लेने का काम करना है. लेन देन का विषय है, बट व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज 80% केसेस में हम देने की कोशिश करें और 20% केसेस में हम लेने की कोशिश करें, to make the world a better place. That comes only from the spiritual energy. लेकिन ये एनर्जी क्यों है? इस एनर्जी का यूज टाइम एलोकेशन में हम करेंगे. अब मान लो कि आपने पूरा एनर्जी को लगा दिया, यस आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डूइंग गॉसिपिंग. मैंने इंस्टाग्राम देखने में आज पूरा दिन की एनर्जी खत्म कर दिए. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी ऑल्सो. आपने पूरा एनर्जी को ऐसे काम में लगा दिए जो ना तो इम्पोर्टेंट था ना तो अर्जेंट था, और आप खुश होकर सबको बताए जा रहे हैं, यस आई स्पेंड माय होल एंड सोल एनर्जी टू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज नॉट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट. सो व्हाई दिस एनर्जी? ये एनर्जी, अगर एनर्जी ना रहे तो यू मेक द प्लान्स, आपने पूरे लाइफ टाइम प्लान्स बना लिया, यू डोंट हैव एनर्जी, तो क्या करेंगे उस प्लान को बनाकर? उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए यू रिक्वायर एनर्जी ऑल्सो. So you can find the time as a energy also, as an energy also. Time energy है. Optimize the energy level to the most important things you want to do in your life. इस एनर्जी लेवल को ऑप्टिमाइज किसके लिए करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू वांट टू डू इन योर लाइफ. जो अपने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसमें एनर्जी को लगाने के लिए हमको ऑप्टिमाइज करना है. एनर्जी लेवल को ऑप्टिमाइज करना है, ना कि हम नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट पे हमने इसको लगा दिया. नो, ऑप्टिमाइज द एनर्जी लेवल टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू वांट टू डू इन योर लाइफ. इस एनर्जी लेवल को सही एलो यू से यू डोंट हैव एनर्जी. अगर आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास काम नहीं है, कोई बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, कर लो, यू से दैट यू आई डोंट हैव टाइम. आई थिंक दिस इज इंटरनेट कनेक्शन. I am audible to all. Is there any internet connection? Please put it in chat box. If no internet connection, please say no. Please put it in chat box.
Internet issue? There are internet issue? Okay, okay. Parth Patel say, no, there is no internet issue. No problem. Thank you. If you say you don't have time, it means you say you don't have energy. बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है. It means that you don't have energy to do work. Time is energy. If you don't have time, you don't have energy. So, next point is the way you spend your time determines your energy level. किस तरह से अपने समय को व्यतीत करते हो पूरे दिन में, पूरे दिनचर्या में, वो डिटरमाइन करता है कि आपका एनर्जी लेवल कितना है. आप टाइम को मैनेजमेंट के साथ सही एलोकेट करते हुए अगर आप जीवन को जिएंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है. अगर आप टाइम को वैल्यू देते हैं तो टाइम फिर आपका वैल्यू देता है. आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ते हैं, आपके मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सबको ऐड करता है. द वे यू स्पेंड योर टाइम डिटरमाइंस योर एनर्जी लेवल. वो एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है. दिस इज ऑल अबाउट द टाइम इज एनर्जी. नाउ टाइम इज मनी. ये समय मनी भी है. बट हाउ कैन आई मैनेज इट? कैसे ये मनी है, हम इस पे केस स्टडी भी करना चाहेंगे. हाउ टाइम इज मनी. टाइम इन टर्म्स ऑफ मनी हम इसको थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करते हैं. योर मंथली इनकम इज आर 60,000 रुपीज पर मंथ. सपोज आपका मंथली इनकम, ऑल्दो यू आर स्टूडेंट्स, बट जस्ट टेक इट, आप अपने जिंदगी के किसी मोड़ पे आप जॉब भी करेंगे और मान लीजिए कि आपका इनकम 60,000 पर मंथ. इफ योर मंथली इनकम इज 60,000 पर मंथ, तो टाइम गिवन, अगर आप जॉब करते हैं तो टाइम 25 डेज देते हैं, क्योंकि 30 डेज में 4 संडेज आ गए. अगर एक सैटरडे छुट्टी है तो कुल मिला के हम 5 और कम कर दिए. सो 25 वर्किंग डेज होता है एक महीने में. और प्रत्येक दिन 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 8 आवर्स पर डे की ड्यूटी करते हैं. तो मल्टीप्लाई करने से 200 आवर्स. इसका मतलब 200 आवर्स काम करने से आपको 60,000 रुपीज मिलते हैं. So value of 1 hour of your time is Rs 300 rupees. If you multiply 300 into 200, that will automatically becomes the 60,000 rupees per month. कि आपके 1 घंटे का कीमत 300 रुपीज है. 1 घंटे का कीमत 300 रुपीज है. इसका मतलब है कि आपके जिंदगी का जो 1 घंटा है उसका कीमत 300 रुपये है. इन टर्म्स ऑफ टाइम, ऑल्दो टाइम का तो कोई मूल्य ही नहीं होता, लेकिन हम इसमें एक केस स्टडी करना चाह रहे हैं. Time in terms of money, it means that at present time, this is 300 rupees. हमारा गोल क्या होना चाहिए? The goal of our life should be consistently increase the value of our time. उसी 1 घंटे समय को हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज करना. वैल्यू कितना हो रहा है? 1 घंटे का भी 300 है, उसको 400 करेंगे, उसको 500 करेंगे. बाय इंट्रोड्यूसिंग आवर स्किल, क्या कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो उस सॉल्यूशन को संसार को दे पाए और हमारे 1 घंटे की कीमत को 300 से बढ़ा के 600 कर दे, 600 से बढ़ा के 900 कर दे, 900 से 1200 कर दे, 1000 कर दे, लाख कर दे? क्या ऐसा स्किल आपके पास है? इफ नॉट, प्लीज फाइंड द स्किल्स, एंड इट इज पॉसिबल इफ यू मैनेज द टाइम. टाइम मैनेजमेंट से, टाइम को वैल्यू देके ये आप कर सकते हैं. द गोल ऑफ आवर लाइफ शुड बी consistently increase the value of our time. समय के वैल्यू को बढ़ाना, क्योंकि हम समय पे ध्यान ही नहीं देते, समय को देखते नहीं. हमको पता नहीं रहता कि 1 घंटे समय का कितना मूल्य है. बस समय को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं गॉसिपिंग में, एंड देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज. सो व्हाट वी रिक्वायर टू डू इज we have give some special kind of attention to 1 hour of our time. 1 घंटे का कीमत कितना होता है, आज कितना है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें. कैसे बढ़ा सकते हैं? इफ यू फाइंड व्हाई, हाउ ऑटोमेटिकली कम्स. आप व्हाई तो ढूंढिए, और जब व्हाई को ढूंढ लेंगे आप, तो हाउ ऑटोमेटिकली कम्स. हाउ आई कैन यूज द स्किल्स टू बिल्ड द मनी ओवर इट.
सो केस स्टडी एक हम करना चाहते हैं, जस्ट टाइम इज मनी, तो उस पर मैं एक केस स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे सपोज प्राइस ऑफ मोबाइल एट Amazon इज 10,999। मोबाइल फोन का कीमत कितना है? 10,999। अगर अमेजोन में सर्च करते हो तो इफ यू सर्च इज एट द Amazon, 10,999 रुपीज उसका प्राइस है। अगर आप मार्केट प्राइस की बात करें तो आपको मार्केट में दुकानदार बुला रहे हैं कि आइए मेरे पास 9,999 में ले जाइए, अमेजोन में तो महंगा है। और आप मेंटली यही सोचेंगे, ओके 1,000 रुपये तो हम बचा लेंगे, और दौड़ेंगे उसके लिए, चलो मार्केट चलते हैं, 1,000 रुपये सेविंग हो जाए, कम बात है क्या। तो मैं कैसे समय को देखता हूं वो देखिए। द टाइम स्पेंड टू बाय फ्रॉम मार्केट इज 6 आवर्स। आपने 6 घंटे लगा दिया। अगर आप मान लो कलोल में हो, अहमदाबाद चले गए, जाने में टैक्सी भाड़ा लगेगा, आने में लगेगा, फिर वहां पे मित्र लोगों के साथ जाएंगे, कुछ वहां पे होटल में जाएंगे, कुछ सिनेमा देखेंगे, ओवरहेड चार्जेस होंगे, उस चीज को हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपने 6 घंटे बिता के 1,000 रुपये बचा के हम बहुत खुश हो गए, अमेजोन को तो हमने ठग लिया। लेकिन सच क्या है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर मनी इवेल्युएशन की बात करें, इफ यू इवेल्युएट द मनी, तो उसकी बात अगर मैं करूं, द टोटल कॉस्ट इफ यू परचेज फ्रॉम मार्केट, अगर मार्केट से लेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 9,999, जो कि मोबाइल का दाम है, प्लस 1 घंटे का कीमत 300 रुपीज है। आपने 6 घंटे बिता दिया, 300 × 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस ओवरहेड चार्जेस, जो कि ओवरहेड चार्जेस को मैं बहुत कम रखा हूँ। बहुत ज्यादा भी हो जाता है, डबल भी हो जाता है, कभी कभी तो होटल में जाके पार्टी करेंगे 5,000 भी निकल जाएंगे। व्हाट विल हैपन हियर? अगर मैं ऐड करता हूं तो 11,799 प्लस ओवरहेड, और 11,799 ओवरहेड में बहुत ही कम रखा हूं, और उसको मैं 12,000 कर दिया। अमेजोन में दाम कितना था? लगभग 11,000, 10,999, 11,000 रुपीज। मार्केट से आप खरीद के कितना मिला है? 12,000 रुपीज। लेकिन आपका मेंटल स्टेटस क्या है? योर मेंटल स्टेटस इज, मैंने तो अमेजोन को ठग लिया, मैंने तो 1,000 रुपये बचा लिए, मैंने तो जिंदगी को एंजॉय भी कर लिया। लेकिन असल में आपने लॉस किया है। 12,000 में खरीदे, जो कि 10,999 में मिल सकता था, आपको 1,001 रुपये का लॉस हो गया। बट योर व्यू इज द सेविंग ऑफ RS 1,000 रुपीज। आपका व्यू क्या है? आप तो सोच रहे हो मैंने तो 1,000 रुपया बचा लिया। असल में क्या हो रहा है कि आपने 1,000 रुपया लॉस किया। दिस इज योर वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द टाइम। अगर आप कहते हो 1,000 रुपये बचा लिए, इसका मतलब है कि आपका ध्यान समय पे बिल्कुल नहीं है, वहां से आप हट गए हैं। और समय पे ध्यान ही नहीं देंगे तो समय का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कभी कभी आप ये नहीं जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। आपने 1,000 का लॉस कर चुके हैं, फिर भी आप खुश हैं कि हमने 1,000 को तो कमा लिया, हमने तो इनकम कर लिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। यू एंजॉय योर लाइफ दैट आई सेव 1,000 रुपीज, but you lost 1,000 rupees. This is in reality because you can't include the value of time, and that's why हम लोग इस स्थिति में आ जाते हैं। सो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आप नहीं जान पा रहे हैं कि आप क्या नहीं जान पा रहे हैं। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई यू जस्ट सी द मनी, यू डोंट सी द टाइम, यू कांट मैनेज द टाइम। तो आपको क्या करना है कि अपने जिंदगी का कीमत समझना है, 1 घंटे का, 1 सेकेंड का कीमत समझना है। आप कैलकुलेट करें कि आपके 1 घंटे का वैल्यू कितना है। स्टूडेंट भी हैं तो उसका भी एक असेट है, उसका भी एक वैल्यू है। यू कैन मेजर व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 आवर ऑफ योर टाइम, उसको भी आप कर सकते हैं। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, लेकिन आज से आपको यह जानना पड़ेगा कि टाइम इज मनी, टाइम इज एनर्जी, टाइम इज एलोकेशन। ये आपको समझना पड़ेगा।
और आज के बाद से समय को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। योर एटीट्यूड टुवर्ड द टाइम शुड बी चेंज फ्रॉम नाउ। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि समय के साथ समय की वैल्यू को बढ़ाना है। आज हमारे समय का वैल्यू 0 है। 1 घंटे का कीमत नहीं जानते हैं। 0 नहीं है, हम जानते नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? तो समय के साथ इसको हमें बढ़ाना है। दिस इज द ग्राफ, आई हैव प्लॉटेड दिस कर्व। और इस समय के साथ समय के वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएं? एट द इनिशियल स्टेज अब भी समय का वैल्यू कितना है? दिस इज 300 रुपीज। 1 घंटे का समय का वैल्यू अभी कितना है? 300 रुपीज। लेकिन क्या हम इसको 300 ही रखें? क्या हम बढ़ा नहीं सकते हैं? इफ यू ऐड द स्किल्स, क्या हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं स्किल को ऐड करके? हाउ कैन आई ऐड समथिंग मोर टू द वैल्यू ऑफ 1 आवर ऑफ आवर टाइम? यस, बढ़ा सकते हैं। आप 300 से 600 कर सकते हैं। जस्ट अप्लाई सम ऑफ द स्किल्स। फिर उसको हम कोशिश करेंगे 600 से हम 900 क्यों नहीं कर सकते? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जस्ट नाउ दिस इज 900 रुपीज। 1 घंटे का कीमत 900 रुपीज। डू यू हैव द स्किल? डू यू हैव द सॉल्यूशन? इफ यू हैव, that you can do it. This problem is, this sansar, this world is full of problems. ये प्रॉब्लम से भरा हुआ संसार है। कोई भी एक प्रॉब्लम को लेकर के उनका सॉल्व करें, वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है। Everyone is ready to give you money. Necessary condition is that do you have the solution of their problem? And if you have, वो आपको देने के लिए घर आ जाएंगे। आप सॉल्यूशन तो दीजिए उनको। आप बढ़ा सकते हैं 300, 300 से 600, 600 से 900। You can increase the value of your time with respect to time if you add a skill, if you add a skill to your life, irrespective of knowledge. So 900 से हम 1000 भी कर सकते हैं। We can increase our time. Now this may equal to 10,000 rupees. Again, this may be 10 to the power 5, that is 1 lakh per hour. You can also increase this. इस तरह से हम टाइम को प्लॉट करें तो हम इंक्रीज कर सकते हैं इन दिस वे। Now the cost of time for Bill Gates, if we think about the Bill Gates, उसका cost of time क्या है? The cost of time for Bill Gates, it is 8,000 rupees. Would you please tell me? क्या आप इसमें बता सकते हो वो 1 मिनट का है या 1 सेकेंड का है? Please put it in chat box. This is for 1 minute or 1 second. 8,000 rupees 1 second. Very nice. Good answer. This is for 1 second. This is for 1 second. The cost of time for Bill Gates is 8,000 rupees per second. 1 second. The time is value. Bits over the time is money. Value your time to get money out of it. There are some homework because okay. होमवर्क, जब इतना हमने समय दिया है तो कुछ होमवर्क भी देना जरूरी है। आप लोग होमवर्क करें इस पे। और ये होमवर्क ये है कि मॉर्निंग टाइम टेबल, यू जस्ट नीड टू फॉलो द मॉर्निंग टाइम टेबल। इस तरह से हमने बनाया है, जो हमने फॉलो किया है इसको। सो दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू कन्वर्ट योर मॉर्निंग टू द मिरेकल मॉर्निंग। ये मिरेकल मॉर्निंग में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं? जस्ट वेक अप 4:55 to 5। यहाँ पे वेक अप, फॉर्मेशन, मेक बेड, फ्रेश अप, वार्म वाटर, लेमन, हनी, सॉल्ट, यू कैन ऐड एंड यू कैन, आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, फिर बाथ, एंड देयर इज मेडिटेशन आल्सो, फिजिकल एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन। कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो टाइम यहाँ पे एलोकेट किया गया है, कितने समय में क्या करना चाहिए।
तो मीनिंगफुल स्पेसिफिक यहाँ पे बनेगा। कुछ जॉब ड्यूटी हमारे पास है, तो मॉर्निंग टाइम टेबल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन follow this timetable. Please take the screenshot sort of it. And then this is some of, अगर आप कुछ बुक लिखने में है या कुछ आर्टिकल लिखने में इंटरेस्टेड है, तो यू कैन मेक अ प्लान ऑफ वीकली प्लान, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 टू वीक 10। आप जो बुक लिख रहे हैं उसका कौन सा बुक लिख रहे हैं, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, या बुक रीडिंग, इफ यू डोंट राइट बुक जस्ट ट्राई टू रीड बुक। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, ऑथर क्या है, कौन से डेट को स्टार्ट किया, एंड कब किया, कितना % कंप्लीट कर पाए, समरी क्या है उसका, और 3 की टेक अवेज क्या है, ये आप लें और इसको रोज मैनेज करें। देयर इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। इफ यू मैनेज द टाइम, you can do everything what you want in your life. So time management is very important. Ultimately, we can say that time is allocation, time is energy, and time is money. This is all about the time management. And if you manage your time, you can manage your life, you can balance the work life balanced. आप कर्म और जीवन के सामंजस्य को स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। This is from my side about the time management. Thank you all for your kind attention. Please over to Namrata ma'am. Please come. I thank Arun sir for his wonderful session on time management. I'm sure you have gathered very well from his session. Thank you, Arun sir. And I see so many questions also, sir, here, if you wish to answer them, sir. हाँ सर। सर एक क्वेश्चन तो है, कॉलेज कब खुलेगी? कॉलेज तो 4th को आपको आना ही है, तो ये आपको हम लोग और फिर से अनाउंस फिर से करते रहेंगे। डोंट वरी, यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। 4th को आपको फिजिकल, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। एंड 1st को ऑनलाइन होगा इंडक्शन, और 4th को ऑफलाइन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि cultural@indusshielduniversity.edu.in में आप जो है अपने नाम जो है भेज सकते हैं कि आपको किस कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। मैंने आपको उस दिन बताया था, डांस है, सिंगिंग है, और मिमिक्री है, वन एक्ट प्ले है, या स्टेज शो आपको आता है, ठीक है ना। सर का लिए एक पहला क्वेश्चन है, सर इफ स्पिरिचुअल एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इन अस, अशोक पांडे हैं, उनका क्वेश्चन है ये। इफ स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्ग इन अस, then it gives us emotional and mental and sometimes physical both energies. Yes, it's a very nice question. सर आप ऑडिबल नहीं है। Audible? जी सर, आप अनम्यूट करिए सर अपने आप को। Now I am audible? यस सर। Okay, okay. कहाँ से मेरा टच कर दिया? Okay, okay. If you have the spiritual energy, it means that you have physical energy, you have the balance, ये mental energy also. This is your question कि अगर हमारे पास spiritual energy है तो हमारे पास सब प्रकार की एनर्जी है। हमारे शरीर में 72,72,72,210 नाड़ियां हैं। अगर आपके पास वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट विल कम फ्रॉम द सम ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक द मेडिटेशन, और उससे मैक्सिमम पोर्शन में आप अपने उस नाड़ियों को एक्टिवेट कर पाते हैं। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी करते हैं, उससे भी कुछ परसेंटेज, लेकिन कम, लेकिन एक्टिव जरूर कर पाते हैं, तो वहां से भी एनर्जी एक्टिवेशन होता है। बट स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका वो मेंटल एनर्जी को बहुत कंट्रीब्यूट करेगा, फिजिकल एनर्जी को भी कंट्रीब्यूट करेगा। दे कंट्रीब्यूट होल ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग। इट मीन्स दैट what you require is that you have to involve in the spiritual practices, and obviously that's okay, but I suggest that in spite of the spiritual energy you also do some of the physical exercise, क्योंकि spiritual energy केवल बोलने से नहीं होगा, spiritual practice करेंगे तो कुछ कम करते हैं, तो कुछ एनर्जी आप एक्सरसाइज से ले लें, कुछ एनर्जी आप मेंटल पॉजिटिव थिंकिंग,
थॉट फीलिंग एक्शन टू फील, ऐसे करके ले लें. सो स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट अ लॉट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको बॉडी मूवमेंट फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान देने की जरूरत है. बहुत सुंदर जवाब दिया सर आपने कि स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, सबका एक बैलेंस होना चाहिए जीवन में. ये तीनों बैलेंस, क्योंकि हम अभी फिजिकल फॉर्म में भी हैं, हम मेंटली भी हम एक्टिव हैं, और स्पिरिचुअली भी हम किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं. तो हमें ये तीनों का ही बैलेंस रखना चाहिए. जब तक शरीर है तब तक फिजिकल एक्टिविटी भी, फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा सर, क्योंकि वो बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. और फिर जब हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने में कोई ये नहीं रहेगा, टाइम नहीं लगेगा. और इसलिए समय जो है उसका सही तरीके से जो हम लोग मैनेज करें. टाइम तो जाएगा ही जिस गति से जा रहा है, लेकिन उसको मैनेज करना हमारे हाथ में. और आप सर ने काफी सॉल्यूशंस दे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आपको होमवर्क भी दिया, या बहुत अच्छे सबके आंसर्स भी मैंने देखे. सो थैंक यू अरुण सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन. And students, we had second half reserved for research orientation skills, which we could not continue today for some reasons. So maybe, once you join the college, that will be continued, or that will be taken care of. Okay, so today we are going to end soon, and you people will be very happy that आज 12:30 के बजाय थोड़ा जल्दी छूट गए. ठीक है, but couple of announcements again for you all. In the chat box I'm dropping this email ID, wherein you can please send your names across. That is, I'm yet to get the entries. cultural@ Indrashil university.edu.in. प्लीज इस ईमेल आईडी पे अपना नाम, आप किस ब्रांच में है, किस प्रोग्राम में है, और किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप करिए. हाँ, हॉस्टल के बारे में अनाउंसमेंट हम तुरंत दे रहे हैं आपको. 30 तक, 1 तक आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. वी आर स्टिल to go with 3-4 more days. By Friday everything will be clear to you, crystal clear to you, whether it is transport facility or hostel facility, everything will be made clear to you. राइट सर, एक आपके लिए बहुत सारे अप्रिसिएशन आए हैं सर. थैंक यू सर फॉर टाइम मैनेजमेंट. has been an issue for me since early school times, but this session seems to be a solution for me. Thank you so much for explaining this thing in a such a simply way. Akash has one more question. Yes, Akash, you can go ahead. Please drop in. We still have time and we can handle your question. Akash, if you can hear me, drop in your question. And just let me know if the question is. Please be very, very active. You will have a surprise welcome also from your seniors. So pull up your socks. बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए आप. फर्स्ट को हमारा इंडक्शन होगा, उसमें भी आप अटेंड करिएगा पूरा. अच्छा, आकाश का सर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है. बस विल बी देयर एट 4 अक्टूबर. सर मैंने जैसा आकाश जी, मैंने जैसे आपको बताया कि सारे अनाउंसमेंट 30th या 1st को पूरे कर दिए जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी. एडमिशन टीम आपके टच में है, हम लोग आपके टच में हैं. हमें जैसे ही मैसेज आएगा, वी आर डूइंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर यू ऑल. सारे अरेंजमेंट्स चल ही रहे हैं एट द बैक. ठीक है, तो डोंट वरी. ठीक है, सो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से टाइम पे मिलते जाएगा. एडमिशन टीम आपके टच में है. हम लोग भी जब भी सेशन ये 11 से 12:30 के बीच में रोज चल ही रहे हैं. कल आपका प्लेसमेंट और करियर रिलेटेड जो है सेशन रहेगा. एंड मिस्टर विजय जो हैं, वो हमारे प्लेसमेंट सेल के हेड हैं, वो कल सेशन लेंगे. सो एनीथिंग रिलेटेड टू इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, वो आपको सारा बताएंगे कि हाउ वी वर्क हियर. और हमारा एक स्टार्टअप और इनोवेशन सेल भी चलता है, तो हाउ वी कैन हेल्प यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो, तो वो भी आपको रहेगा. 30th को एक और इम्पॉर्टेंट प्री इंडक्शन का लास्ट सेशन है, दैट इज बाय हर्षिता आहूजा, एंड आई विल बी देयर अगेन. एंड उसमें ग्रूमिंग का
वंडरफुल है, शी इज एन इमेज कंसल्टेंट, उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा, जरूर अटेंड करिएगा एंड यू विल रियली चेरिश कि ऐसा सेशन जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर बाहर आप अटेंड करेंगे, बट इंद्रशील इज going to provide you that important session also. Okay, so please we'll try to address to all your problems. Don't worry, हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी नियमों का पालन करना हो रहा है, वो डायरेक्शंस पूरे गाइडलाइंस हमारे को आ रहे हैं. राशि, दिस लिंक डज नॉट हैव एनीथिंग टू एंटर अवर नेम्स. नहीं नहीं, ये लिंक में नहीं, मैंने आपको ईमेल आईडी भेजी है, राइट? This link does not have anything to enter our names. No, nothing, Rashi. I have shared with you cultural@indushieluniversity.edu.in. ये email ID है जहां पे आपको अपना नाम भेजना है. ठीक है, 1 to 2 आपका क्विज रहेगा, 2 to 4 आपका कल्चरल टैलेंट शो होगा जिसमें आप अपना टैलेंट दिखाएंगे. वेरी फर्स्ट डे यू आर गिवन द प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी टू शोकास योर टैलेंट एंड मेक योर कॉलेज लाइफ, फर्स्ट डे इन कॉलेज लाइफ एज मेमोरेबल. ठीक है, सो हम एक बार फिर से थैंक यू करते हैं अरुण सर का कि उन्होंने आज बहुत अच्छी तरह से अपना जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया. सो थैंक यू ऑल. इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क और एल्स विल रैप अप. We'll wait for a second. फोर्थ से हम सब कैंपस में हाँ आ जाएंगे ना. हाँ बिल्कुल आ जाओगे दर्शन. all are invited on 4th. बिल्कुल बिल्कुल, all are. BTech, BSc, MSc, everyone is welcome on 4th, provided everything is, God forbid I feel my yes hostel वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा, everything obviously. हाँ प्रियांशु ने कहा है बहुत अच्छा सेशन रहा है सर आपके लिए. सर साइड में ही बैठेंगे. ओके, थैंक यू दर्शन. सर भी हैं इधर, सर भी थैंक यू बोल रहे हैं, राइट? ओके, अरुण सर हमारे साथी हैं, बीटेक में एचओडी हैं, तो इंद्रशील के साथ जुड़े हुए हैं, तो ही इज अवेलेबल व्हेनेवर यू हैव एनी क्वेरी, ही इज अवेलेबल टू गाइड यू. टाइम ऋत्विक, एक्चुअली कॉलेज का टाइम तो 9 से 4 होता है. आप कहाँ रहते हैं और कौन से स्टॉप में आप चलेंगे अगर आप डे स्कॉलर हैं तो, और अगर हॉस्टल वाले हैं तो शायद हॉस्टल वालों को बोल दिया जाएगा कि एक दिन वो पहले आ जाएंगे, संडे तक आ जाएंगे, तो आपको पता रहेगा. कॉलेज की टाइमिंग्स 9 to 4 है. आपका 10 बजे से कैंपस टूर रहेगा और उसके बाद 1 से 2 लंच के बाद, 12 से 1 के बीच में लंच टाइम है. 1 से 2 जो है आपको पूरा वो शेड्यूल भी शेयर कर दिया जाएगा. 1 से 2 क्विज है सेमिनार हॉल में, 2 से 4 टैलेंट शो है. ठीक है, सो डू सेंड इन योर इंटरेस्ट, योर पार्टिसिपेशन at cultural@indushieluniversity.edu.in. okay, thank you, have a nice day. We can wrap up, Prachi or Yes, ma'am. Shashwat. Yeah, okay, thank you everyone.